There seems to be no end to the ongoing controversies stirred by singer-composer Vishal Dadlani through his insensitive tweet against a Jain monk, Tarun Sagar. Now an FIR has also been filed against the music director, Congress worker Tehseen Poonawalla, for allegedly posting a photograph of a Jain monk with a topless woman on Twitter. Jain groups today even took to the streets in the national capital, and they even held massive protests outside the Chief Minister's residence. A police complaint was filed at the Shahadra police station alleging that the music director has hurt the religious sentiments of the Jain community. Minister Satyendra Jain has even personally apologized on Vishal Dadlani's behalf, and he has also met the religious leader Tarun Sagar personally. भी पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि वो नग्न रहते हैं। इसके अलावा उनको कुछ भी मालूम नहीं है। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय परंपरा के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो 10% जो विचारों से सहमत नहीं होते हैं, उनमें से है ये लोग है। और मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई परेशानी नहीं है। Let's go straight now to India Today's Anindya Banerjee, who joins us for more on these protests taking place outside the Chief Minister's residence. Anindya, no respite for Vishal Dadlani, who continues to face the heat over his tweet that apparently mocked the Jain monk. Tell us, what exactly are these community members of the Jain groups protesting about? Well, to begin with, Avantika, they demand that they must, the concerned person, that's Vishal Dadlani, as well as Tehseen Poonawalla, who happens to be related to Congress, both of them apologize, and both of them be arrested under relevant sections of the IPC. That is their primary demand, because they say that not wearing clothes is part of Jain culture, and Jain, that is the ultimate form of sacrifice of worldly forms of worldly things that they call, and there's no harm in it. The way both of them, particularly Vishal Dadlani, who is believed to be very close to the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, mocked him, hurt their religious sentiment. This is why it's very so embarrassing for the Aam Aadmi Party, because Punjab election is just around the corner, and they have already courted controversies earlier. They hurt sentiments of Sikh community. That's why it forced the Delhi Chief Minister to go all the way to the Golden Temple and do seva, and now it has sparked another furor. As much as 27 police complaints have been filed all across India. Okay. So much so that it forced Vishal Dadlani to apologize personally 33 times online over Twitter. All right, Anindya, thank you so much for giving us more details about the demands that have been put forth by members of the Jain community. We have with us Manjeet Sehgal, who joins us with the Jain monk, and he is going to be talking to him about the entire controversy. What does he feel about it? Manjeet, Vishal Dadlani has already offered an apology. He's even gone ahead and resigned from the Aam Aadmi Party. Then why are we getting to see such protests? Well, Avantika, Tarun Sagar's followers believe that merely tweeting and tendering apology on Twitter or Facebook or social media will not matter. He should personally come here and tender his apology personally before Munishri Tarun Sagar. So Vishal Dadlani has angered his followers here, who also burnt his effigy in Chandigarh, and his followers also submitted a memorandum to the Governor Punjab and Haryana and demanded stern action against him. Meanwhile, an FIR has also been registered in Ambala on the basis of a complaint filed by one of the followers for hurting the religious sentiments of Jain community. Avantika, I'm also joined by Munishri Tarun Sagar ji. Let us go across to him. Munishri, ये बताइए कि पहले जो है आपके वस्त्रों के ऊपर सवाल उठाए गए, अब कोई पिक्चर भी एक आपत्तिजनक जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप की जो भावना है वो आहत हुई हैं? देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है वो चित्र से ज़्यादा चरित्र महत्वपूर्ण होता है। तो मुनि के पास, मेरे पास जो है वो चरित्र है। तो लगता है कि मुनि नग्न हैं, लेकिन उन्होंने तो एक इतना चरित्र का वस्त्र धारण कर रखा है कि वो दिगंबर है, दिशाएं ही उनके अमर हैं। तो वो
अपने चरित्र को लेकर के जीते हैं और वो तो बालक की तरह है। मुनि का मतलब है कि वह कपड़े छोड़ देने से कोई मुनि नहीं होता है। वस्त्रों के साथ विकारों का भी जो त्याग करता है वो दिगंबर मुनि होता है। तो जिस तरह से बच्चा जिसके मन में कोई विकार नहीं होता है, ऐसा ही मुनि का जीवन होता है। प्रकृति ने जैसा पैदा किया हम वैसे ही रह सकते हैं, वही आदमी वस्त्र त्याग सकता है। ये वस्त्र तो कमजोरी को ढकने के लिए होते हैं। तो वो इस तरह से जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग, उनको लगता है कि ये क्या है, लेकिन जो समझते हैं संस्कृति को, धर्म को समझते हैं, उनके लिए तो बहुत ही श्रद्धा का विषय होता है, भक्ति का विषय होता है। अच्छा मुनिश्री, ये बताइए, देश को जोड़ने वाले आपके 4 सपने हैं, 4 आप पूरे कर चुके हैं, 2 आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जो 4 नए सपने हैं आपके, वो क्या हैं? 4 नए सपने मैंने 4 सपने पहले देखे थे। 20 साल की लंबी साधना के बाद वो 4 सपने पूरे हो। और सपने भी ऐसे थे कि चूंकि मेरे साथ बहुत सारी मर्यादा हैं, उन मर्यादाओं में रहते हुए वो 4 मैंने सपने पूरे किए। लाल किले से राष्ट्र को समृद्ध करने का सपना था, पूरा हुआ। एक बार भारतीय सेना के बीच में जाकर अपनी बात करने का था, वो भी सपना पूरा हुआ। एक सपना था कि भगवान महावीर जेएनयू के कब्जों से बाहर निकाल के चौराहे पर आए ताकि उनका जीवन और संदेश दुनिया के सामने आ सके, वो भी सपना पूरा हुआ। और एक सपना था लोकसभा विधानसभा में जाकर के जनप्रतिनिधियों के बीच में अपनी बात करूं, वो भी सपना पूरा हुआ। ये जब मेरा चौथा सपना पूरा हुआ, मुख्यमंत्री यशवंतिका मुख्यमंत्री निवास मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास पर मुझे बुलाया गया, सीएम हाउस पर। वहाँ पर मैंने 4 नए सपनों की घोषणा की। उसमें पहला सपना ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गणवेश है उसमें जूते और बेल्ट का, चमड़े का कंपलसरी गणवेश में था। मोहन भागवत मुझे विजयदशमी में बुलाया गया था। मोहन भागवत जी से मैंने आग्रह किया था कि ये अपने गणवेश से इसको बाहर करिए, और अंततः संघ ने ये तय किया कि अब कोई भी गणवेश में चमड़े के बेल्ट और जूते का इस्तेमाल नहीं होगा। वो ये एक सपना था। नए 4 सपने थे, उसमें से एक पहला सपना पूरा भी हो गया। दूसरा सपना था कि 10 लाख लोगों को शाकाहारी बनाना, उनको मांसाहार का त्याग करवाना। ये अभी हमारा काम चल रहा है। जहाँ भी जाते हैं हमारी सभा में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप मांसाहार मत करिए, आप शाकाहारी बनिए। दूसरा सपना था। तीसरा सपना था कि एक बार मस्जिद में, गिरजाघर, चर्च में जाकर के मानवीयता की बात करूं, ये तीसरा सपना है। और चौथा सपना है कि पद विहार करते हुए देश की सीमा से बाहर जहां पैदल जा सकता हूं, उन कंट्री में जाऊं और वहां पर सत्य की, अहिंसा की जय घोष का दिव्यता बढ़ाऊं। Okay. Manjeet, can you just ask a question that now, tempers are rising here in the national capital. We saw massive protests by the Jain community. What will, help calm matters? Vishal Dadlani has already tendered an apology. He has resigned from the Aam Aadmi Party. What will pacify or placate the spiritual guru? अच्छा मुनिश्री, आप क्योंकि जो विशाल ददलानी है उन्होंने अपना माफ़ीनामा दे दिया है और उन्होंने कई बार माफ़ी मांग ली है, आप किस तरह से जो आपके जो साधक हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो या आपके जो भक्तजन हैं, वो उनका गुस्सा शांत हो, आप क्या कहेंगे उनको? मैं तो यही सब लोगों को कहना चाहूँगा, सामने वाले ने क्षमा याचना कर ली है, माफ़ी मांग ली है, तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। अनावश्यक बढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं तो विराम देना ही चाहिए, क्योंकि सब लोग भारत के निवासी है, देशवासी है। तो कुल मिलाकर के सब हम भाई भाई, अपने ही भाई हैं। वो भी जो जिनने टिप्पणी की है, आलोचना की है, वो भी अपने ही भाई हैं। तो अगर माफ़ी मांग ली है तो क्षमा करने का भी हौसला दिखाना चाहिए। And can you also ask him that who from the Aam Aadmi Party has contacted him? Which ministers have, personally contacted him to tender an apology? अच्छा मुनिश्री, ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से किन्होंने आपसे भेंट की है और क्या बातचीत हुई है? ये जो इस तरह से पार्टी विशेष पे ये घटना डाल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ये ठीक नहीं है।
चूँकि ये आदमी करता है उसका परिणाम दुष्परिणाम किसी दूसरे को भोगना पड़ता है। गलती तो फला आदमी ने की है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो है या परिणाम जो है वो किसी पार्टी को भोगना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। अभी सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी जैन दिल्ली से आए थे और उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि आप हमारे द्वारा आपके मन को कोई खेत पहुंचा हो तो हमको माफ़ करना, ऐसा उनकी भावना थी। मैंने कहा मुझे तो इस बात पे कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है मैं चलता हूँ। और ये शत्रु मित्र और ये पूजा करने वाले और निंदा करने वाले ये दोनों ही समान हुआ करते हैं मुनि के लिए। लेकिन कड़वे प्रवचनों में मैं लोगों को ज़रूर कहता हूँ, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपकी बुराई करता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर गली में 2-4 सुअर रहें तो गली साफ रहती है। इसी तरह अगर ज़िंदगी में 2-4 आलोचक रहेंगे आपके तो आप भी सजग रहेंगे, सावचेत रहेंगे। इसलिए आलोचक से घबराने की ज़रूरत नहीं है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दा आदमी की कभी निंदा नहीं होती। Back to you, Avantika. All right, Manjeet Sehgal there. Thank you so much for speaking to us and also getting us to hear from the Jain monk himself, Tarun Sagar, who said that he has already received an apology from various members of the Aam Aadmi Party, including Satyendra Jain, and he urges his community now to refrain from protests and to just, calm down and settle the matter.